सब स्पीकर्स ने बात की कि जैसे इंडिया is one of the 53 countries which still today has retained death penalty. We also saw how India tries to justify retaining of death penalty not only in the domestic sphere but also on the international platform. In the second session, we are having 4 speakers. All 4 of them are agitating and litigating on the issue of death penalty and other political issues. In fact, some of them have faced state repression, have been arrested under fabricated cases, which alone shows that in a country where investigation is so skewed, in a country where the judiciary is so arbitrary, then do we have space for death penalty. The first speaker, and as I say the speakers' names, I would be very happy if they would come and take their seats on the podium. The first speaker is Mr. Navkiran Singh. Is Mr. Navkiran Singh. The second, if somebody could just tell, I think he has come to Delhi, so somebody could just tell, thank you. The next, please. Then is Yug Mohit Chaudhary, Kirti Singh, and there is a slight change. Mr. Tyagarajan hasn't been able to come, so in his place we have Soni Suri. Mr. Navkiran Singh, who is going to be our first speaker, is a practicing lawyer from the Punjab and Haryana High Court. He's been practicing since 1986. He's also the founder member and general secretary of a self-funded NGO called Lawyers for Human Rights International. It is a part of an international campaign against death penalty. He has helped the cause of many prisoners facing death penalty through free legal aid and PILs. And he's presently involved with the Dharampal case, which was a prisoner from Haryana who's facing death sentence and whose mercy petition has been rejected. So we are very happy to have Mr. Navkiran Singh. Next is Yug Mohit Chaudhary. He's a practicing lawyer from the Bombay High Court and he also happens to be my colleague. He's handled all major cases of death penalty in India, and the most recent case, the one where the judgment was recently passed in January 2014, it was his perseverance, his wanting to ensure that the Supreme Court looks at the issue directly, and he played a very major role in this, and thanks to him 15 death sentences have been commuted. Kirti Singh, we all know, a practicing lawyer from the Supreme Court and the Delhi High Court, closely associated with the All India Democratic Women's Association, and has been an active participant in movements, Mathura rape case, Shah Banu judgment, demolition of Babri Masjid, and currently involved in different issues of violence against women. Thank you. Soni Suri, an activist, school teacher in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ स्कूल टीचर, हम सब लोग ने सुना था कैसे उस पे स्टेट ने माओइस्ट के लिंक्स के साथ कितना स्टेट रिप्रेशन किया, कैसे उसके सामने केसेस फैब्रिकेट किए, फॉल्स केसेस डाले। तो हम बहुत खुशी है कि मिस सोनी सूरी भी यहाँ आई है। Of course, sadly, when you are here moderating, I mean, time does become an issue, पर उसके ज़्यादा important मुझे बताना है कि अगर कोई स्पीकर अपनी बात बहुत इंग्लिश और हिंदी में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। So the first speaker, Mr. Navkiran Singh. बहनों और भाइयों, क्योंकि ज़्यादा जो लोग हैं वो मैं समझता हूँ कि हिंदी समझ सकते हैं और
वैसे तो पंजाबी समझने वाले भी बहुत हैं, लेकिन अगर मैं पंजाबी बोलूँगा तो बाकियों को समझ नहीं आएगी। असल में ये जो बहस है कि क्या सजाए मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत लंबी बहस है और इसका अंत कहाँ होगा इसका किसी को कोई ध्यान नहीं है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ लोग अनपढ़ हैं और अवेयर नहीं हैं और इस बात को समझ नहीं सकते कि जो सजाए मौत है उसकी क्या बुराइयां हैं, तो आने वाले समय में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में शायद सजाए मौत ख़त्म ना हो, जो मुझे लगता है। मुझे 27 साल हो गए वकालत करते हुए, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो अपनी कैंपेन है सजाए मौत के खिलाफ उसको ढीला कर देना है या हमें डिप्रेस्ड फील करना है। भी होना तो कुछ है नहीं, तो हम लड़ाई क्यों लड़े? क्योंकि लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलत बात है उसको गलत कहना ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, ये एक सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे पास 400-500 ऐसे वकील हैं जो अपनी कमाई में से आप खर्चा करते हैं और एनजीओ चलाते हैं। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेंबर भी हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले समय में इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ मिलकर वर्ल्ड कोलिशन अगेंस्ट डेथ पेनल्टी है एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हम स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं पिछले 4-5 साल से, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं हम इकट्ठे होके वो सारी जो लड़ाई है भी कैसे इंटरनेशनल कैंपेन की जाए कि जो डिफरेंट मुल्क हैं, जो देश हैं, उनको हम ये कन्विंस कर सके कि अपने अपने स्टैट्यूट से अपने अपने कानूनों में से सजाए मौत को ख़त्म करो, क्योंकि सजाए मौत जो है वो अमानवीय है। लेकिन वो लड़ाई बहुत लंबी है, तो मैंने ये सोचा कि अगर हम लोगों को कन्विंस ही कराते रहेंगे और देशों को कन्विंस करवाते रहेंगे तो पता नहीं उसमें से कब हमें कुछ मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो अपना एक रोल आइडेंटिफाई हम करें कि किस तरीके से जो लोग डेथ पेनल्टी को फेस कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से राहत पहुंचा सकते हैं। सो एज ए एक्टिविस्ट और एज ए ह्यूमन राइट्स लॉयर जो मैंने अपनी ड्यूटी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी ड्यूटी निश्चित की, हमने जेलों में जाना शुरू किया कि जिस जेल में पंजाब, हरियाणा और यूटी में, क्योंकि जिस हाई कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की हाई कोर्ट है, तो हमने ये कोशिश की कि हम जो लोग डेथ पेनल्टी फेस कर रहे हैं उन लोगों को जाके मिले, उनसे पूछे भी आपको क्या तकलीफें हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और हमें बड़े लोग ऐसे मिले जो बहुत लंबे समय से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। अब आपने सुना होगा कि ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप नहीं रख सकते। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डेथ सेंटेंस वाले कैदी को रखना गैर कानूनी है और अमानवीय है। ये 1978 में सुनील बत्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन उस जजमेंट के बावजूद जो है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहां पे आपको मिलेगा कि जो डेथ सेंटेंस वाले कैदी हैं, जिस दिन सजाए मौत अनाउंस की जाती है सेशन जज से, उसी दिन उसको उस फांसी की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 साल या 5-5, 6-6 साल किसी और इंसान की शक्ल नहीं देखी, सिवाय कि वो जो एक गार्ड है जो उसकी फांसी कोठी के आगे चक्कर लगाता है। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आधा घंटा सुबह बाहर निकाला जाता है, आधा घंटा बाहर शाम को निकाला जाता है। तो मैंने ऐसे कैदियों को मिलना शुरू किया। मैंने कहा भाई आवाज़ तो हम बुलंद कर ही रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कब सजाए मौत खत्म होगी? लेकिन जो लोग पीड़ित हैं उनको अगर हम राहत ना दे सके तो मेरा ख्याल शायद हम अपनी ड्यूटी निभा नहीं सकेंगे। क्योंकि एक वकील होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, जो हमारे पास एक हुनर है हम उसका जो है पूरा फायदा उठाए। तो एक धर्मपाल कैदी है हरियाणा में,
उस कैदी को जब मैं मिलने गया, उस कैदी के उसके सेल के बाहर मैं जाके जब खड़ा हुआ, क्योंकि ऐसे कैदियों को जाके वो बाहर आके नहीं मिलाते और सेल के आगे मिलाते हैं, तो मैं जब गया तो मैं 10 मिनट के बाद मुझे वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। और अम्बाला जेल में वो था, चंडीगढ़ से देख लीजिए अम्बाला जेल 45 मिनट के डिस्टेंस पे है, कोई ये नहीं है कि कोई रिमोट एरिया है। अम्बाला जेल की वो उस कोठरी में जहाँ उसको बंद किया गया, उसमें ना पानी था ना बिजली थी। और ये 2 साल पहले की बात है, मैं कोई लंबे समय की बात नहीं कर रहा, 2 साल पुरानी बात है। और मैंने फिर जाके चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे मैं उसको मिल के आया हूँ, उसके पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, उसके पास बिजली नहीं है, और उसको दिन में 1 घड़ा पानी का दिया जाता है और एक बेड पैन दिया हुआ था जो हॉस्पिटल्स में देते हैं, इसमें आपने अपने एक्सक्रीशन करनी है और उसी से अपने आप को आपने नहाना है, उसी से पानी पीना है और सब कुछ वही करना है। अब देखो अम्बाला जेल हो और 45 मिनट के डिस्टेंस पे कैपिटल हो चंडीगढ़ की और हरियाणा पंजाब की, और हाई कोर्ट इतना नज़दीक हो, लेकिन उस कैदी को ना कोई मिलने गया, और उसके रिश्तेदार 2 साल हो गए थे, उसका रिश्तेदार उसको कभी मिलने नहीं आया। तो मैंने उसकी फिर जो है कैंपेन चलाई कि उसकी मर्सी पिटीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जल्दी डिसाइड करे और उसको जो है उसकी फांसी को कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील किया जाए। तो उसका हुआ ये कि उसकी फांसी की जो सज़ा थी उसको तो बरकरार रखा गया, प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन उसकी रिजेक्ट कर दी। जिस दिन मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की, मैंने फटाफट उसके रिश्तेदारों को पता किया और पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की, और हमने स्टे भी करवा ली उसकी, क्योंकि ये केस पेंडिंग था जिसका फैसला अब आया 15 लोगों का। तो हमने हाई कोर्ट को कहा कि अभी 15 लोगों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे बहस चल रही है और पता नहीं क्या वो मोड़ ले, तो आपको इस आदमी को सजाए मौत एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। चलो, उस जज साहबान ने उसको स्टे कर दिया। उसके बाद उसके मुझे रिश्तेदार आए और मैंने सारा रिकॉर्ड उसका पढ़ा, तो उसके ऊपर एलिगेशन क्या थे कि उसके अपने ही रिश्तेदारों में जमीन का झगड़ा था। जमीन के झगड़े में उनके रिश्तेदारों ने उसके ऊपर रेप का झूठा केस रजिस्टर करवा दिया, और घर वालों ने ही उसके जो कोलेट्रल्स थे, भाई बंधु, उन्होंने अपना बयान दिए और उसको रेप के केस में सजा हो गई। अब जब उसको रेप केस में सजा हुई तो उसका जो सिस्टम से उसका विश्वास उठ गया। उसने कहा कि देखो, टोटली झूठे गवाह और मेरे रिश्तेदारों ने अब जमीन ना देने के एवज में मुझे जो है 10 साल की कैद करवा दी। तो वो पैरोल पे जाके उसने उस परिवार के 3-4 मेंबर्स जो है उनको मार दिया। अब उनको मारने के बाद जब वो पहली कन्विक्शन होगी उसकी रेप की, दूसरी उसकी मर्डर की कन्विक्शन होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको और इसके भाई को दोनों का ट्रायल हुआ, और इसके भाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम देते हैं, लेकिन इसको धर्मपाल को हम जो है डेथ पेनल्टी देते हैं, क्योंकि इसने रेप भी किया था और रेप के दौरान जो है पैरोल पे जाके इसने मर्डर किया था। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि उन रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2004 में किया मर्डर केस का, लेकिन उस रेप केस में उसके बाद 99 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और 2004 में जो रेप का केस था उसमें हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब जो आधार था उसका सुप्रीम कोर्ट के जज साहबानों का उसको डेथ सेंटेंस देने का कि इसने रेप किया है और रेप की सजा काटते हुए पैरोल पे जाके इसने मर्डर किया, इसलिए इसको डेथ सेंटेंस देनी चाहिए, और वो जो कारण था वो खत्म हो चुका था। लेकिन वो इतना गरीब आदमी था कि उसको मालूम ही नहीं मैं अपने वकील को कैसे बताऊं। उसके रिश्तेदारों ने जब मुझे बताया, मैंने कहा भी आपने किसी अपने वकील से बात नहीं की? वो कहते जी हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो इतना भी किराया नहीं है कि हम जाके वो रेवाड़ी के या हिसार के रहने वाले हैं, अम्बाला जेल में जाके उसको मिलाएं। तो इन हालातों में लोगों को सजाए मौत दी जा रही है। इतने साल आज़ादी के बाद भी हम ऐसा एक सिस्टम नहीं बना सके कि जिसमें एक गरीब आदमी, जब उसको आप ट्राई करते हो ऐसे ऑफेंसेस में जिसमें सजाए मौत भी हो सकती है, उसको कोई इफेक्टिव लॉयर आप दे सको। लीगल एड के वकील जो है वो ज़्यादातर वो वकील होते हैं जिनकी वकालत नहीं चलती।
और कम पैसों में वो अपना लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, और गरीब आदमियों को फांसी दी जाती है, और अमीर आदमी जो मर्जी जुर्म कर ले इस देश में वो बच के बाहर निकल जाता है। तो कैसे हम कहेंगे जी कि सजाए मौत अच्छी चीज़ है? अब लोगों को ये विश्वास दिलाना, लोगों को ये बताना कि सजाए मौत तो गरीबों को दी जाती है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को दी जाती है या माइनॉरिटीज को दी जाती है इस मुल्क में, और कभी देखा है कि अमीर आदमी को सजाए मौत मिली हो? अमीर आदमी तो सबसे बड़ा वकील करके किसी ना किसी तरीके अपना रास्ता बना के बरी हो जाता है। अगर ना भी बरी हो, अगर आपने देखा होगा किशोरी लाल जो एक बुचड़ था जिसने सिखों का कत्लेआम किया 1984 में, उसने 13 सिख मारे थे या 7-8 सिख मारे थे, और जब सजाए मौत दी दिल्ली की हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया और कहा कि इसके उस वक्त जो इसके भाव थे वो, क्योंकि मुल्क की एक बहुत बड़ी लीडर मरी थी तो ये दुख में था तो इसने ये काम कर दिया। अब बताओ, ये हमारे जज हैं तो और ऐसे ही वो जजमेंट आपने देखी होगी कि जो ग्राहम स्टेन्स के केस में दारा सिंह को जजमेंट दी गई। तो जिस कानून को जज तोड़ मरोड़ सके ऐसा कानून होना ही नहीं चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल व्यूज के कारण एक जज उसी केस में सजाए मौत दे देता है, दूसरे में उम्र कैद दे देता है, तो ये ऐसा कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन टाइम लगेगा लोगों को इस बातों पे कन्विंस करने के लिए कि ये कानून बहुत बुरा है और इसको खत्म करना चाहिए। सो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सजाए मौत जो है ना तो किसी को सबक देती है। अब आप देखो कि 1.2 बिलियन पीपल हैं, लेकिन सजाए मौत के जो सारे हिंदुस्तान में केस चल रहे हैं 500 के करीब या 450 के करीब चल रहे हैं, जो डाटा इकट्ठा किया है कमेटी ने, और उनमें से सिर्फ 15-20 ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हो कि उनकी अभी फाइनल स्टेजेस पे वो आ रहे हैं। तो करना क्या है ऐसे कानून को? अमेरिका में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, चाइना में साल में कम से कम वो 1000 आदमी को फांसी की सजा देते हैं और 3000 के करीब लोग जो हैं वो सजाए मौत फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो रेफॉर्मेटरी प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ हमारे पास सीरियल क्रिमिनल्स हैं, सीरियल रेपिस्ट नहीं है, सीरियल मर्डरर्स नहीं है। जो भी लोग क्राइम करते हैं वो हीट ऑफ द मोमेंट करते हैं और ना वो क्राइम रिपीट करते हैं। मैंने डाटा इकट्ठा किया है, पंजाब हरियाणा में जितने लोगों को उम्र कैद हुई, जब वो पैरोल पे अपने घर गए, उनमें से सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो वापस नहीं आए, और ऐसे ही 2% है जिन्होंने क्राइम रिपीट किए। तो अगर पंजाब हरियाणा की स्टेट का आरटीआई में जो इंफॉर्मेशन मैंने निकलवाई, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 2% लोग सिर्फ क्राइम रिपीट करते हैं तो हमें जरूरत क्या है ऐसे कानून बनाने की कि किसी को हम फांसी की सजा दे दें? क्यों ना उसको रिफॉर्म किया जाए। तो हमारे यहाँ जो है रिफॉर्मेटरी प्रोसेस बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और किसी की जान लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं उस किन हालातों में उसको सजाए मौत दी गई है। अगर आप वकील अच्छा नहीं दोगे, गरीब आदमी को पता ही नहीं है कि मेरे हक क्या है, हकूक क्या है, और उसको फांसी की सजा दे के तख्ते पे लटका के ये दिखाओगे भी शायद और लोग क्राइम ना करें, तो ये बहुत बड़ा जो है हमारे मन में ये वहम है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जो मीटिंग है वो बड़ी मुबारक है, और क्योंकि मैं कल के सेशन में मैंने नहीं होना और आज भी मैंने जल्दी जाना है, तो मैंने एक सुझाव मैं जरूर दूंगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन बनी है, इस कोऑर्डिनेशन को, ये पहली बार ही हुआ है कि ये कोऑर्डिनेशन ऐसी कोई बनी है ऑल इंडिया लेवल पे। तो इसमें जितनी ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है उस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अपने इलाके जो है डिवाइड कर लेने चाहिए। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया में काम करेगी, इतने जो स्टेट्स हैं वो कवर करेगी, ताकि थ्रू आउट द इंडिया वी हैव अ नेटवर्क ऑफ लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट। जो किसी को भी सजाए मौत हो हम उसकी जाके मदद कर सकें, उसका दुख तकलीफ कम कर सकें, और हमारे पास डेटा भी मुहैया हो। किसी को मर्सी पिटीशन लिखवानी है, किसी लोगों को ये भी नहीं मालूम है मर्सी पिटीशन में लिखना क्या है, और टाइम से मर्सी पिटीशन नहीं लिखी जाती,
ना ही उनको डॉक्यूमेंट दी जाते हैं। अब जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट की आ गई, लेकिन फिर भी बहुत काम करने वाला है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, अपने तरफ से ये हम ऑफर करते हैं कि पंजाब, हरियाणा और यूटी का एरिया हम कवर कर सकते हैं। हमारे पास एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे पास लॉयर्स भी हैं, और अगर आप चाहो, आप समझो कि हम इस काबिल हैं, तो हम सेवा करने के तैयार हैं। और हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जो भी गरीब गुरबत का आदमी है उसकी मदद करते हैं। और इस तरीके से अगर हम सारा हिंदुस्तान को कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तक सजाए मौत है, कम से कम हम उन लोगों की सेवा कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं खेमा कर जाती हूँ। थैंक यू सो मच।